Hi guys, good morning. I am Dr. Sunil Vats here in front of you to discuss a last topic for the class 12th in revision tour, and the last topic for today is about a file handling. This is the concept which is new for the students, and also we have the basic operations we will perform here. Here we will discuss about the file handling, and here we have basically two type of files. First one is text file and second one is binary file. In this topic particular, we will discuss about the text file. In the next video we will discuss about binary file and also a third type which we will discuss, and also in your syllabus, that is .csv file, means comma separated file. That is actually the file from abstracted Microsoft Excel or spreadsheet. Let's move for the first topic, that is file handling. And in file handling we will discuss text file. First of all, we will discuss what is file. What is file? Here we will discuss that a file is a collection of bytes, and collection may be contiguous. It can be used to store data. Data is organized in a specific format and can be anything as simple as a text file or as complicated as a program executable. Means we can say that a file is a collection of data. It is collection in a form of byte, or it can contain a text. Text will be a simple text or it may be a program executable file. In the end, these byte files are then translated into binaries 1 and 0. When we are starting the concept of computer, in the computer fundamental, we have just listen or learn about a binary numbers or number system, where we have discussed that in computer science we have basically only two values, 0 and 1, or we can say that bool value or binary values. Here the same is here 1 and 0 for easier processing by the computer. This is the language of computer which is directly understood by the system. The system cannot understand the language which is written by the human being or can be read by the system, by the human being. Here file on most modern file system are composed of three main parts. हमारी जो भी फाइल होती है उसके हमारे तीन मेन कंपोनेंट होते हैं. एक तो आपका हेडर होता है, एक होता है आपका डाटा या कंटेंट ऑफ द फाइल, और तीसरा होता है हमारा एंड ऑफ फाइल. मींस एवरी फाइल मस्ट हैव थ्री पार्ट. फर्स्ट वन हेडर, सेकंड वन डाटा, और थर्ड वन एंड ऑफ फाइल, आल्सो नोन एज EOF. हियर फर्स्ट वन हेडर. हेडर क्या करता है? मेटा डाटा अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द फाइल. अब मेटा डाटा यहाँ पे बात आई है. मेटा डाटा क्या होता है? अ डाटा अबाउट डाटा. ए डाटा अबाउट डाटा इज नोन एज मेटा डाटा. इट कैन कंटेन द फाइल नेम, इट्स साइज, टाइप एंड सो ऑन. मीन्स लाइक यूजर नेम, टाइम ऑफ क्रिएशन, मोड ऑफ फाइल एंड सो ऑन. Second one, data. Already we say that a data is a collection of raw facts or figures. Contents of the file as written by the creator or editor. आपने आपकी फाइल के अंदर जो भी लिखा है, जो भी आपने उसके अंदर राइट डाउन किया है, that data is known as the content of the data. The content of the file. Then we have end of file. Sometimes we can also call it EOF, means end of file. This is the point when the data of the file ends. Special character that indicates the end of the file.
What this data represents depend on the format specification used, which is typically represented by an extension. Means every file must have an identification, and that identification is called the extension name of the file. Like if we have Microsoft Word file, then the extension name may be .doc. If you have the PowerPoint file, then it will contain an extension name .ppt. If we have Excel file, then it is contain the extension name .csv. If we have a text file, then the extension name may be .txt. So every file must have an extension name, and there is thousands of extensions name in a computer system. Here some examples are there. A file that has an extension of .gif most likely conforms to the graphics interchange format specification. There are hundreds or thousands of extensions out there. Here we will deal with .txt file, और मैंने आपको बताया है कि .txt, this is the .txt, this is the extension name for text file, and here we are going to discuss about the text file. Let's move. Here I have two files. First one is this and second one is this. This is the file which is in text mode, and it can also easily readable by the human being, like this: last name, sales, country, quarter, Smith, so on. But this is a binary file which is normally found in the form of 0 and 1. So it can be easily readable by the system only. It can intervene by the human being. So here Python provide inbuilt function for creating, writing and reading files. Means when we have a file, we can perform many operations, but many of them or main important functions on a file is that we can create a file, we can open a file, we can append a file, we can read a file, we can write a file, or we can even delete a file. There are two types of files that can be handled in Python: normal text file and binary file. यानी कि हमारे कंप्यूटर में बेसिकली दो तरह की फाइलें होती है, एक हमारी टेक्स्ट फाइल होती है और एक आपकी बाइनरी फाइल होती है. यहाँ पे टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है? टाइप ऑफ फाइल, ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद ए स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड EOL. इन द लास्ट वीडियो और लास्ट PPT I have defined EOL. नेक्स्ट, विच इज द न्यू लाइन कैरेक्टर. अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यदि आपने नहीं दिया है सिलेक्शन, तो बाय डिफॉल्ट हमारा वो लग जाएगा. यानी कि टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी हमारे लाइन का लास्ट कैरेक्टर होगा, वहां से लाइन हमारी चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट वी हैव बाइनरी फाइल. इन दिस टाइप ऑफ फाइल देयर इज नो टर्मिनेटर फॉर ए लाइन एंड द डाटा इज स्टोर्ड आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल बाइनरी लैंग्वेज. यानी कि जो हमारी बाइनरी फाइल होती है उसमें टर्मिनेटर नहीं होता है, जबकि टेक्स्ट फाइल में हमारा एक टर्मिनेटर होगा जिसको हम /n से रिप्रेजेंट करेंगे. अब यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में हमारे पास कोई भी प्लेन टेक्स्ट फाइल हो सकती है. XML यानी कि एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज सोर्स कोड हो सकता है. सोर्स कोड हमारा, जैसे जब हम कोई फाइल लिखते हैं तो वो हमारे सोर्स कोड में होती है. यानी कि सोर्स कोड हमारा वो कोड होता है जैसे आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन बीइंग रीड कर सकता है. आफ्टर दैट वी हैव JSON. JSON मींस JavaScript Object Notation. Then we have binary file like compiled code, app data, media file. It may be image file, it may be video file, or it may be an audio file. Here this is the example of binary file and this is the example of text file. Let's move ahead. Here first of all, how to create a text file. कोई भी टेक्स्ट फाइल क्रिएट कैसे की जाती है. इन Python it is very easy to create a new file. Here
first of all, to create a text file, suppose I want to create a file named as JNV. When I want to create a JNV file, just I will write down f equal to open f. This is the object which we must be create. F equal to open JNV.text. This is the file mode, and it is compulsory when we want to perform any operation on the file. By default, if we didn't write the mode of file, then by default it will be in readable code. When I write down this code, a file will be created named as JNV. Here in the example I have shown that here this file will be created, JNV.text. Then we declare the variable f. हमने यहाँ पे जो किया ये डिफाइन f to open a file named JNV.text. इसके बाद इसमें दो आर्गुमेंट आपके आए हैं. एक तो हमारा आया है सबसे पहले फाइल का नेम जो मैंने यहाँ पे JNV दिया है, और दूसरा जो यहाँ पे है वो है स्ट्रिंग जो हमें उसकी परमिशन के बारे में बताता है कि जो परमिशन हमने ली है वो किस रूप में ली है. मीन्स जो JNV फाइल हमारी क्रिएट होगी वो किस मोड में क्रिएट होगी या ओपन होगी. अब यहाँ पे फाइल ओपन हो रही है, बट किस मोड में? W प्लस. W प्लस का मतलब है इट विल बी इन रीड प्लस राइट मोड. आगे हम जब चलेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये हमारे फाइल के मोड है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूं. इसके बाद होता है हमारा स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या होता है, यदि आपने किसी भी फाइल को अपेंड करना है, आपने उसके अंदर कुछ राइट डाउन करना है अपने फाइल के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सीधा रूप यूज करूंगा, फॉर I in range 10 means it will write down the line. This is line. %d होता है हमारा इंटीजर वैल्यू के लिए. और मैंने आपको बताया था कि /n जो है वो हमारा टर्मिनेटर होता है, आपका लिमिट डिलिमिटर होता है किसी भी फाइल के अंदर. I + 1, I will start from 0 and it will continue 1 2 3 4 up to 10. We have a for loop that run our a range of 10 number using the write function. अब यहाँ पे जो मैंने यूज किया है, पहले मैंने फंक्शन किया था ओपन. ओपन का मतलब था कि मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया है. कौन सी फाइल को? JNV को. इसके बाद मैंने इस फाइल में कुछ राइट डाउन करना है, कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन f.write. इसके बाद हमारा यहाँ पे है कि यूजिंग द राइट फंक्शन टू एंटर डाटा इनटू द फाइल, द आउटपुट वी वांट टू इटरेट इन द फाइल इज दिस इज लाइन नंबर विच वी डिक्लेयर. और यहाँ पे यदि मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये मेरा इस फाइल का आउटपुट आ जाएगा. दिस इज लाइन 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10. ये मेरी फाइल के अंदर आपका राइट डाउन होगा. और फाइल कौन सी होगी मेरी? वही जो JNV मैंने ओपन की हुई थी. इसके बाद मैं थोड़ा पीछे चलूंगा. यहाँ पे यदि आप यहीं पे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ये मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया था और मेरा ये आउटपुट आपका आ जाएगा. अब इसके बाद थोड़ा सा जो डिस्कशन करेंगे वो होते हैं हमारे फाइल मोड पाइथन के अंदर. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यानी कि जब भी आप अपने फाइल के अंदर ऑपरेशन कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम यू मस्ट डिफाइन द मोड ऑफ द ऑपरेशन, दैट विच टाइप ऑफ ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म ऑन द फाइल. हियर R means it is a read only mode. It open the text file for reading. When the file is not present, it raises input output error. यानी सबसे पहले देखेगा कि जो आपने फाइल ओपन करने की, रीडिंग करने के लिए, ओपन करने के लिए बोला है, क्या वो फाइल हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है? यदि अवेलेबल है तो उसको ओपन कर देगा. यदि फाइल वहां पे नहीं है, then it will produce error. Then R plus means mode for reading and writing. प्लस में भी आ जाएगा, इसका मतलब it will contain two operations, reading and writing. When the file is not present, also it will raise a error. W, as its name suggests, write only. When the file is not present, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या था भाई, यदि फाइल नहीं है तो इनपुट और आउटपुट का एरर आएगा. लेकिन राइट के अंदर ऐसा नहीं होगा. यदि फाइल वहां पे नहीं है तो वो उस फाइल को बना देगा फर्स्ट टाइम में.
then start writing. When the file is present, it will remove the content of that file and start writing from beginning. और यदि फाइल वहां पे ऑलरेडी है तो उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उस पूरे को इरेज कर देगा, खत्म कर देगा और उसकी जगह पे नया कंटेंट जो है उसमें ऐड करेगा विच वी वांट टू राइट डाउन। और इसके बाद हमारा W+ ये हमारा राइट एंड रीड मोड होगा। यदि हमारी फाइल वहां पे प्रेजेंट नहीं है, इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट देन इट विल क्रिएट द फाइल। व्हेन द फाइल इज प्रेजेंट द डाटा विल बी ओवर रिटर्न, पहले डाटा जाएगा वो आ जाएगा। इसके बाद है ए होता है अपेंड मोड, जो क्या करेगा हमारा जो डाटा है वो फाइल के एंड में लिख देगा। मीन्स यदि आपके पास ऑलरेडी फाइल थी, उस फाइल का डाटा हमने खत्म करना है और नया डाटा डालना है तो यूज करेंगे W को। आप चाहते हो कि आपके पास जो फाइल है उस फाइल में जो डाटा है वो डाटा भी रहे और उसके एंड में फिर मेरा डाटा और ऐड हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल आगे दिए है, यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास एक फाइल है जिसमें मैंने डाटा ऐड किया। सपोज कि यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है और यहाँ पे मैंने यूज किया आपका, सबसे पहले मैंने उस फाइल को ओपन कर लिया। फाइल.txt मेरी है, ये वाली फाइल मैंने यहाँ पे सुनील नाम दिया है। अब इसके बाद इन्होंने आपका रीड फाइल, इस फाइल को ये रीड कर रहा है। इसके बाद मैंने इस फाइल को क्रिएट करना है। क्रिएट क्या किया मैंने, कौन सा मोड लगाया मैंने, राइट। W मोड में यहाँ पे लगा रहा हूं। लेट्स सी हाउ टू क्रिएट ए फाइल एंड हाउ राइट मोड वर्क्स। अब यहाँ पे मैं लिखा फाइल इक्वल टू ओपन और यहाँ पे मैंने कर दिया आपका सुनील, जैसे मैंने किया हुआ है सुनील.txt। किस मोड में, W मोड में, राइट मोड में। यदि इस फाइल में कुछ भी डाटा होगा, भी डाटा जैसे ये है, अब ये डाटा है तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये इस डाटा को इरेज कर देगा, खत्म कर देगा। और अपना डाटा जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे भाई इसमें लिखना है दिस इज द राइट कमांड एंड इट अलाउ अस टू राइट इन ए पर्टिकुलर फाइल। ये मेरे को लिख के दे दे तो ये क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा और उसकी जगह पे ये डाटा मेरा आ जाएगा। यदि यहां पे मैं W की बजाय लिख देता ऑपरेशन A तो फिर क्या होता, ये डाटा भी मेरे इस फाइल में कंटेंट रहता और इस फाइल के एंड में जाके फिर ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऐड हो जाता। ये होता है हमारा अपेंड मोड। अब इसके बाद जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं फाइल का, उस फाइल का ऑपरेशन करने के बाद उस फाइल को हमने क्लोज करना होता है और क्लोज करने के लिए मेरा ऑपरेशन होता है फाइल.क्लोज, जो हमारी कमांड क्या करेगी, टर्मिनेट कर देगी जितने भी रिसोर्सेज थे हमारे यूज के दौरान और फ्री कर देगी हमारे सिस्टम को। चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा ऑपरेशन जो हम करें इसके बारे में बता देता हूं आपको। अब इसके बाद ए आ गया, ए में मेरा क्या है, अपेंड करेगा मोड को और उसके बाद है हमारा A+ में क्या है, अपेंड भी करेगा और रीड मोड भी होगा। इट कैन अपेंड डाटा एज वेल एज रीड द डाटा। ये हमारे बेसिकली 6 मोड होते हैं फाइल के अंदर। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं भाई किसी भी फाइल में अपेंड अपने डाटा कैसे करना है। ये हमारा अपेंड था। अपेंड के अंदर यहाँ पे यदि f.write करूंगा और इस फाइल को मैंने मोड जो है वो A+ लिया है तो इसको उस टेक्स्ट के बाद में ऐड करेगा। यदि मैंने यहाँ पे अपेंड की बजाय W कर दिया है तो जो पहले टेक्स्ट है मेरी फाइल में, पहले उस फाइल को डाटा को इरेज करेगा और नया डाटा उसके अंदर राइट डाउन कर देगा। मीन्स दो डिफरेंस आपके आगे। इफ द फाइल इज इन W मोड and I want to write down the data, then the previously written data are erased by the system or interpreter. If I have used the A mode, then it will add the data at the end of the file. After that we have the write function, write data. अब write मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है और वो मैंने आपको बता दिया write से हमारा क्या होगा। After that file path, जब भी आप अपने सिस्टम में काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमने अपने फाइल को ओपन करना होता है और फाइल को ओपन करने के लिए इट इज कंपल्सरी फॉर द यूजर टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द फाइल। द प्रॉपर लोकेशन ऑफ द फाइल इज नोन इट्स पाथ। और पाथ में क्या होता है हमारा, व्हेन यू एक्सेस ए फाइल ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम ए फाइल पाथ इज रिक्वायर्ड। File path is a string that represents the location of a file. It is broken into 3 major parts. 3 पार्ट कौन से है, ये तो है हमारा यूनिक्स के अंदर जिसमें यूज करते हैं। ये विंडो में यूज कर रहे हैं तो विंडो के अंदर बता रहा हूं आपको।
क्या होगा, एक तो होता है फाइल का नाम, एक होता है उसका एक्सटेंशन। जैसे मैंने लिखा आपका कि सुनील .txt मैंने लिख दिया। इसका मतलब है ये मेरी फाइल का नाम है, और .txt जो मैंने लिखा यहां पे, यानी कि मैंने यहां पे जो लिखा है भी सुनील .txt, जो ये txt है ये मेरा है एक्सटेंशन नेम। जैसे यहाँ पे ये फाइल है उसका नाम लिखा है animals.csv, तो एनिमल जो है वो नाम है फाइल का, और .csv ये हमारा एक्सटेंशन नेम है, और यहाँ पे हमारी ये इसकी रूट डायरेक्टरी है। अब इसके बाद क्या है, एक्सटेंशन हमारा एंड ऑफ फाइल पास प्रीपेंडेड विद ए पीरियड डॉट। अब यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो ये हमारा एक्सटेंशन नेम हो गया। लेट्स से हैव ए फाइल लोकेटेड विद इन ए फाइल स्ट्रक्चर। अभी उन्होंने एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल में आपने क्या होगा भाई, आपकी फाइल जो स्टोर है उस फाइल की जो लोकेशन होगी वो फाइल हमारे कौन से ड्राइव में है, किस फोल्डर में है, किस नाम से है, यानी कि किस ड्राइव में है वो उसका पाथ होगा, किस फाइल किस ड्राइव के किस फोल्डर में है वो उसका पाथ होगा, और उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है वन मस्ट कीप इन माइंड दैट द मोड आर्गुमेंट इज नॉट मैंडेटरी, इफ नॉट पास्ड देन पाइथन विल assume it to be read by default. Already I have told you that when we want to open a file and we didn't write the mode of the file like r plus w plus a or a plus, if we didn't write down, then by default the file will be open in read mode like this one here, this one, and without this it also perform the same operation. Then we have the working of read mode. यहाँ पे हमारे फाइल को रीड करने के लिए बेसिकली हमारे पास तीन ऑपरेशन होते हैं, एक रीड होता है, एक रीड लाइन होता है, एक रीड लाइन्स होता है। आगे हम इनको पढ़ेंगे वन बाय वन। जैसे यहाँ पे मैंने किया आपका, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपके तीनों ऑपरेशन जो है वो मैंने करके दिखाए हैं। सॉरी, यस, यहाँ पे अभी आ जाएगा, आपको दिखाऊंगा आपको। ये हमारे यहाँ पे रीड ए फाइल लाइन बाय लाइन, यहाँ पे हम करेंगे अभी इसके तुरंत बाद ही। भाई देयर इज मोर देन वन वे टू रीड ए फाइल। अब रीड फाइल में कौन सा है हमारा, अब यहाँ पे फाइल को रीड करने के लिए मेरे पास वन वे टू रीड ए फाइल इन पाइथन, इफ यू नीड टू एक्सट्रैक्ट